अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। अमेरिका ईरान जंग के दरमियान खुसूसी एक्साइज ड्यूटी में नरमी, पेट्रोल पर 10 रुपये फी लीटर कमी, डीजल ड्यूटी फ्री, वजारत फाइनेंस का ऐलान। हिंदुस्तान आलमी तवानाई की सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए है, लॉकडाउन का कोई मंसूबा नहीं। वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा कोरोना जैसी सूरत-ए-हाल का मुआवजना सिर्फ एहतियात के लिए था। पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी में कमी महज एक दिखावा, अवाम को कोई फायदा नहीं, कांग्रेस की कड़ी तनकीद। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में मुसलसिल गिरावट, $1 ₹94.28 से तजावुज कर गया, माहिरीन की तशवीश। नई नीति सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। हुकूमत हिंद ने मगरबी एशिया में जारी जंग के दौरान पेट्रोल और डीजल पर आयद खुसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में नरमी का ऐलान किया है। ज़ात ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर खुसूसी एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है, जबकि डीजल को इस ड्यूटी से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना करार दिया गया है। सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि ये तब्दीलियाँ मरकज़ी एक्साइज क़वायद और ड्यूटी के ढांचे में तरमीम के ज़रिए नाफिज की गई हैं और इनका इत्तलाक़ फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन में अवामी मफाद का हवाला देते हुए इस इक़दाम को ज़रूरी करार दिया गया है और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के हवाले से भी खुसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी मुक़र्रर की गई है। Conflict situation in mind, Honorable Prime Minister, being Ram Navami, despite Ram Navami, all the officers and others were called. Honorable Prime Minister held a meeting, and in that it was decided that there should not be a shortage and there should not be an increase in price due to the global situation in crude, in petrol, diesel and in ATF. So Honorable Prime Minister, despite it being Ram Navami, called a meeting of all concerned, and today we have announced a decision whereby we will be giving support to the oil marketing companies so that they can import the material and not really, even if it is imported at a higher cost, the common citizen will not have to face any increase in the price of petrol or diesel. Equally, even for ATF, which is so required for aviation, we are making sure that the prices will not go up and the oil marketing companies will be supported to bring these commodities to India. Equally, another decision which is being taken by the Honorable Prime Minister is to make sure those refineries which get the material from outside, refine them and send as exports these materials, will now have to face a higher duty so that both of diesel and ATF, so that these materials are available for India, they will be made available for domestic market and ensure that we shall not be sending products at a time when we so need them without any shortage. And on the rumors of the lockdown. I am surprised that some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be, shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless, and remarks such as these coming from leaders in political domain is really worrisome. Instead of keeping people together in confidence and giving them the assurance that the central government and state governments are working together and ensuring supply without any disruption for people, because these are essential goods, there are some leaders who are going about saying there will be lockdown and so on. These are absolutely baseless. There shall be no such lockdown like the time when we saw it all in COVID, but no lockdown. But when people are misleading, leaders such as some coming from different states who are misleading people, I condemn their statement and want to reassure people. पेट्रोलियम ड्यूटी में नरमी की हुकूमत के फैसले का मिलाजुला रद्दमल सामने आ रहा है। एनडीए कायदीन ने इसकी तारीफ की है, मगर अपोजिशन अरकान का कहना है कि इस फैसले से अवाम का लेना देना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे अवाम को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अंदर आप देखिए कि पूरे विश्व में जहां युद्ध की स्थिति सब जगह देखने को मिल रही है,
उसी में जो है हम लोगों में 10 एक्साइज ड्यूटी पे जो है 10 रुपए पेट्रोल डीजल दोनों पे कम किया गया है। तो जो भारी नुकसान सब के सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है। और हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो इस मुश्किल की घड़ी में भी जो है हमारी इकोनॉमी को, जो विकसित भारत का सपना है, उस पे तत्पर है। और दूसरी चीज को फिर से उनको जो है वो जो रेटिंग मिली है विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर के, उससे वो उभर के आए हैं, उसके लिए भी हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मूल बात यह है, I on behalf of all the MPs would like to extend heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister for taking such an important decision to cut drastically the excise duty on petrol and diesel. So this is something which is taken only to ensure that the common people do not suffer. So to ensure that such a huge decision taken by the Prime Minister at the top level must be ensured by all cooperation, especially the state government, to ensure that there is no shortage of LPG, petrol, diesel at the ground level. So we all have to support. It's a time of crisis. We have to work as a team. देखिए, मैंने हरदीप सिंह पुरी साहब का बयान देखा था। सरकार के पास भी जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। भाई, सरकार के को लोग टैक्स देते हैं। एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो उसको इतना जताने की क्या जरूरत है। पुरी साहब तो ऐसा जताना चाह रहे हैं जैसे वो अपनी जेब से निकाल के पैसे दे। The government has slashed excise duties for petrol and diesel by 10 rupees, and we welcome this move, bringing down 3 rupees per litre for petrol and 0 for per litre of diesel. This reduction comes at a time when these global energy crisis, where the US-Israel war on Iran has consequently had its own imposition on the Strait of Hormuz. But we all know that Bharat has been proactive for the citizens, and pre-war India bought 12 to 15% of that oil. So the crude oil and gas supply between 20 to 25 million barrels per day has been shipped. पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने जुम्मे को कहा कि आलमी सूरत-ए-हाल अभी गैर मुस्तहकम है। ताहम इन्होंने यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान की हुकूमत हकीकी वक्त की बुनियाद पर तवानाई, सप्लाई चेन और ज़रूरी अशिया की पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मिस्टर पुरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क भर के शहरियों के लिए ईंधन, तवानाई और दीगर अहम अशिया की बिला तात्तुल दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम उभरते हुए चैलेंजेस से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हिंदुस्तान ने आलमी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के सामने मुसलसल लचक और मजबूती का मुजाहरा किया है और हम हर वक्त फ़ाल मरबूत अंदाज में कार्रवाई जारी रखेंगे। मगरबी एशिया में जारी जंग और इसके आलमी असरात के दरमियान मुल्क में लॉकडाउन की अफवाहों ने अवाम में बेचैनी पैदा कर दी थी। ताहम मरकज़ी हुकूमत ने इन खबरों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हुए वाज़ेह किया कि मुल्क में किसी भी तरह का लॉकडाउन नाफिज करने का कोई इरादा नहीं है। ये अफवाहें इस वक्त जोर पकड़ गईं जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने चंद रोज़ कबल पार्लियामेंट में आलमी हालत का जिक्र करते हुए कहा था कि मौजूदा जंगी सूरत-ए-हाल के असरात तवील मुद्दत तक बरकरार रह सकते हैं और दुनिया को कोरोना जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उनके इस बयान को बाज़ हल्कों ने मुमकिन लॉकडाउन से जोड़ दिया, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाक़ों में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। हुकूमत ने इन खदशात के दरमियान आज वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि लॉकडाउन से मुतालिक़ तमाम बातें महज़ अफवाहें हैं। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने सख्त रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि बाज़ सियासी अफराद की जानिब से ऐसी बेबुनियाद बातें फैलाना तशवीश का बास है। इन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान जैसे हालात थे वैसा कोई लॉकडाउन अब नहीं लगाया जाएगा और आवाम को घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान पवन खेड़ा ने पेट्रोल और डीजल पर खुसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में कमी के हुकूमती फैसले पर सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया है।
इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि इस फैसले को राहत के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत में सारिफिन और डीलरों के लिए कीमतें जू की तू बरकरार हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसी ने ये सुर्खियाँ देखकर ये समझा कि ईंधन की कीमतें कम हो गई हैं और हुकूमत ने अवाम को राहत दी है तो ये दुरुस्त नहीं है। उनके मुताबिक मौजूदा वक्त में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई है। यह राहत सिर्फ और सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है और हम और आप जब पेट्रोल भराने जाएंगे तो उतनी ही कीमत देंगे जो कल दे रहे थे। आपको याद दिलाता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार चुनाव हारी मई 2014 में, तब अंतर्राष्ट्रीय कीमत कच्चे तेल की $106.94 थी, लगभग $107 पर बैरल। पेट्रोल मिलता था 71 रुपीज 71 पैसा, डीजल मिलता था 56 रुपीज 71 पैसा। युद्ध से पहले, ठीक युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी $70 पर बैरल, अब है $93 पर बैरल। पेट्रोल आप कितना खर्च कर रहे हैं एक लीटर पे? 95 रुपीज। ये कीमतें क्यों बढ़ी? 60 रुपए में मिलना चाहिए जो पेट्रोल, उसके लिए आप 95 रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 11.5 सालों में सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। और अगर कैलकुलेट करें 11.5 सालों में प्रतिदिन सरकार ने 982 करोड़ इस एक्साइज ड्यूटी से कमाया है। राहत उपभोक्ता को न तब मिली न अब मिलेगी। कल रात को नायरा, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, नायरा ने 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का और 3 रुपए प्रति लीटर डीजल का बढ़ा दिया। जब दबाव कंपनीज का सरकार पे पड़ा तो आज सरकार ने उन कंपनीज को थोड़ी राहत दी है। ये राहत न डीलर के लिए है न कंज्यूमर के लिए है। हरदीप पुरी जी की भाषा सुनिए। ट्वीट में कहते हैं कि भारत की जनता पर दबाव न पड़े इसलिए वो दबाव भारत की सरकार ले रही है। अरे साहब, ये सरकार और ये पैसा दोनों भारत की जनता का है, एप्स्टीन का नहीं है। तो ये एहसान लादने वाली भाषा कम से कम आप न बोलिए। आप भारत के मंत्री हैं, एप्स्टीन आइलैंड के मंत्री नहीं हैं। हमारी खाल उतार के उसकी जूती पहनाकर, हमें पहनाकर हम पर एहसान लाद रहे हो। ये सरकार। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई जंग पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए मरकजी हुकूमत से अपील की कि इस मामले पर फौरी मुदाखलत करें और जंगबंदी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei साहब, उनके कई साथी और करीबी रिश्तेदारों को शहीद किया गया। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। अफसोस की बात यह है कि मामला वहां रुका नहीं। स्कूल में पढ़ते हुए मासूम बच्चियों को जिस तरह बेरहमी से मारा गया, मैं तो कहता हूं कि शायद ही हमारे रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह के कोई वाकयों की हमें याददाश्त हो। और मकसद क्या, अभी भी समझ नहीं आता। अमेरिका के सदर की बात अगर आप सुने तो उन्हें शायद खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये जंग ईरान के ऊपर ठोसा क्यों गया। सुबह रेजिम चेंज की बात करते हैं, दोपहर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, शाम को तेल की कीमतों की बात करते हैं। उन्हें खुद शायद नहीं पता कि लगातार पिछले 3 हफ्तों से जो ईरान के लोग भुगत रहे हैं वो क्यों भुगत रहे हैं। अब हमें ये कहा गया यहां पे कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो डायरेक्टली हमें टच ना करे। लेकिन हमारे कितने बच्चे बच्चियां, कितने हमारे लोग ईरान में फंसे, तो वो तो डायरेक्ट हमें टच कर गया। कांग्रेस रहनुमा अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के 44 एमएलए व एमपी पर ख्वातीन से मुतालिक जराइम के इल्जामात आयद किए हैं। मुख्तलिफ केसेस, नाम और तस्वीर के जरिए हुकूमत की
खामोशी पर सवाल उठाया है। अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में एक ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतनाज़िया शख्सियत जेफरी एप्स्टाइन के साथ नजर आ रहे हैं। लांबा ने इसका हवाला देते हुए कहा कि ऐसे अफराद से रवाबित पर सवाल उठना फितरी है, ख़ासतौर पर जब ख़वातीन से मुताल्लिक़ जराइम की बात हो रही है। माँ काली की मूर्ति और माँ के हर रूप को पूज रही थी और लोगों को पूजते हुए देख रही थी, उसी समय मुझे ये खबर मिलती है कि प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 हो गया है। मुझे समझ नहीं आई प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 क्या हुआ है। तो पता चलता है कि गोवा जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार में भाजपा के पार्षद हैं सुशांत नायक, उनके बेटे जिनकी उम्र 20 साल है, सोहम सुशांत नायक, उसने लगभग 20 से 30 बच्चियां जो नाबालिग बच्चियां हैं उनका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न किया, उनकी वीडियो फोटो बनाई, उन्हें वायरल करता रहा और ये काम वो पिछले 3 साल से लगातार कर रहा था। पार्षद पिता चुप था, भाजपा की पूरी राज्य की सरकार चुप थी। उसी राज्य से दिल्ली में सांसद जो बने, पूरी सांसद दिल्ली की सरकार भाजपा की खामोश थी और ये कांड होता रहा। जब नाबालिग बच्चियों की तरफ से, परिवार की तरफ से शिकायत की गई तो खुलासा हुआ कि कुरचिरम जो साउथ गोवा की ये जगह है, यहाँ ये कांड हो रहा था, 3 सालों से हो रहा था। लेकिन ये कहना कि पुलिस को, समाज को, पार्षद को, विधायक को, सरकार को, मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था, ये 2 बच्चियों के आने से पता लगा कि 2 नहीं 30 बच्ची, नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार भाजपा का नेता का ये बेटा ये कांड कर रहा था। अब जाकर एफआईआर होती है और लोग जब सड़कों पर उतरे तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में उस पे मामला दर्ज होता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तानी रुपए में आज गैरमामूली गिरावट दर्ज की गई। ये तारीख की निचली तरीन सतह 94 रुपये 28 पैसे फी डॉलर आगे निकल गया है। माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, ख़ासतौर पर अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी इसकी गिरावट की बुनियादी वजह बन रही है। इसके साथ ही बैनुल-अक़वामी बाज़ार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फ़ी बैरल तजावुज़ की है। हिंदुस्तान जैसे तेल दरामद करने वाले मुल्क पर दबाव मज़ीद बढ़ा दिया है। LPG की कमी का असर ज़िंदगी के हर शोबे पर नजर आने लगा है। जहाँ होटल बंद होने लगे हैं, वहीं ढाबा और ठेला बंडी वाले भी इस सूरत-ए-हाल से शदीद मुतासिर हैं। टिफ़िन बॉक्स और डब्बा वाला मुंबई की लाइफलाइन का एक हिस्सा है। मुंबई के मुख्तलिफ दफातर में काम करने वाले लाखों मुलाजिमीन के बर वक्त लंच पहुँचाने का काम यही डब्बा वाले करते हैं। मगर अब इन डब्बे वालों का कहना है कि जिन लोगों को मेस से खाना आया करता था वो शदीद मुतासिर हैं और गैस न होने की वजह से इस 80% टिफ़िन बॉक्स की सप्लाई शदीद मुतासिर हुई है। डब्बा वालों का कहना है कि सूरत-ए-हाल ने उन्हें भी मुतासिर किया है और इनके रोज़गार भी लाले पड़ गए हैं। घरों से आते हैं और जो बचे हुए 30% हो वो मेस से आते हैं। तो जो मेस वालों को अभी बहुत सारी दिक्कत आ रही है। बहुत सारे मेस हमारे बंद हो चुके हैं, उनके पास गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग मतलब चूल्हे के ऊपर कर रहे हैं, मतलब कोयले के ऊपर, कुछ लोग सिगड़ी के ऊपर, इलेक्ट्रिक सिगड़ी के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन वो उतना जो संभव है वो मतलब उतना खाना नहीं बना रहे और उनको वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा कटौती उसकी वजह से डब्बे वाले के ऊपर भी आ चुकी है। टाइमिंग को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो सिगड़ी पर बनाने से, इलेक्ट्रिक सिगड़ी या फिर चूल्हे पर बनाने से कितना टाइम जो है वो जा रहा है उस पर बनाने से, और कितने डब्बे वाले तक, मतलब जितना आप गैस होते हुए पहुंचा पा रहे थे डब्बे, उतना कितना मतलब रिड्यूस हुआ है, कितना नहीं पहुंचा पा रहे हैं, किस तरह का अरेंजमेंट पूरा बदल चुका है इस एलपीजी क्राइसिस के बाद। जैसे मैंने बोला ना कि 10 से 15% तो डब्बे वाले के डब्बे में कटौती हुई है और जो एलपीजी की वजह से दिक्कतें आ रही है वो सारे जितने सारे मेस वाले हर किसी को आ रही है। ऐसा कोई मेस वाला नहीं है जो इसके पास 200 डब्बा बनता था वो मुश्किल से 20, 25 या 30 डब्बा बना पा रहा है। तो मतलब गैस की दिक्कत तो आ रही है। अभी शासन की वजह से शासन ने हमें बोला है कि भाई हम आपके लिए कुछ तो हेल्प करेंगे। तो कोई दूसरा उपाय
गैस की जगह आप लोगों ने कुछ शुरू किया है, किस पे कैसे काम चल रहा है पूरे डब्बे वालों का, मुंबई डब्बे वालों का? नहीं, वो क्या हो रहा है कि अभी जो हमारे मेस वाले हैं वो जैसे मैंने बोला कि चूल्हे पे और इलेक्ट्रिक सिगड़ी के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन जो हाँ वो तो मतलब क्या है कि एक चलो 20% वो कर रहे हैं, लेकिन 80% उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है। 80% बिजनेस ठप हो चुका है, 20% काम चल रहा है वो भी सिगड़ी पे और चूल्हे पे। चूल्हे के ऊपर 20 मतलब क्या है कि उतना टाइमिंग क्या है कि हमारा सब काम का जो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड रहता है कि हमारे मतलब वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से वो चीजें होनी चाहिए, तो उनको उतना टाइमिंग नहीं मिल रहा है, उनको पॉसिबल नहीं उतना सारा खाना। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। अमेरिका ईरान जंग के दरमियान खुसूसी एक्साइज ड्यूटी में नरमी, पेट्रोल पर 10 रुपए फी लीटर कमी, डीजल ड्यूटी फ्री, वजारत फाइनेंस का ऐलान। हिंदुस्तान आलमी तवानाई की सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए लॉकडाउन का कोई मंसूबा नहीं। वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा कोरोना जैसी सूरत-ए-हाल का मुआवजना सिर्फ एहतियात के लिए था। पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी में कमी महज एक दिखावा, अवाम को कोई फायदा नहीं, कांग्रेस की कड़ी तनकीद। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट, $1 ₹94.28 से तजावुज कर गया, माहिरीन की तशवीश। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।